dear students. My name is Nilesh Somani, and on behalf of AIS, we are going to give you the very first lecture of the statistics subject. As you can see that in 11th standard, you had gone through the 9 chapters in a year, right? So today in 12th standard, there are also 9 chapters. In part 1, there are 4 chapters. You can have a look at that chapters. The name of the first chapter is index number. Second is linear correlation. Third is linear regression. And the fourth is time series. This one is indicating the subject code 135G for general stream of the commerce, and we are going to discuss and study the very first chapter of statistics today, and the name of the chapter is index number. Okay, so just keep in your mind, first of all we'll go through the process what the chapter exactly indicating us. You can have a look that what the index number says works. You know that कि सेंसस डेटा जो होता है वो 1000 पे काउंट होता है, राइट? पॉपुलेशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1000, लाइक परसेंटेज ऑलवेज ऑन 100. 1 kilogram is equal to 1000 gram. So exactly the index number always calculating on the basis of 100. So index number जो होता है वो हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है. आपको ये समझना है कि ये 100 पे क्यों कैलकुलेट होता है या इंडेक्स नंबर किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है. ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अभी जो हमारा एक सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर एरिया में या मणिनगर में या फिर वस्त्राल के अंदर कितना इंडेक्स नंबर जा रहा है कोरोना पेशेंट्स का. सो इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड द index number of each and every items that given in the textbook. So there are how many methods in or of index number? As I can say that you have to learn only 4 methods in this chapter. If you learn that 4 methods, the chapter would be finished. So I am going to note down the name of that particular methods, and it is our humble request on behalf of AIS that you also take a note and a pen and please note it down in your notebook. That will definitely help you in your chapter. So there are 4 chapters. Now 4 methods also. First is base method. What is all about? We'll discuss it later on. This is the conversion of base method. You might be seeing surprised that what is indicating I, that I stands for index number. So here there are 4 methods that you need to understand. These 4 methods I again repeating to you friends, if you done with these 4 methods, the chapter would be over, right? So we will discuss the first method. Hope you gone through, and please note it down in your notebook. These 4 methods you need to understand and learn in this chapter. Okay, so today in this session what we gonna learn and what I'm going to teach you, right? So you please be calm and think about it. Today we'll discuss about the only first method of this chapter. Okay, so the name of the method is base method. Now what is in it? In base method there are 2 types of scenario in base method. A, that is called fixed base method, and the B is chain
बेस मैथड. Okay, fix, that should be fixed in a year or a month or a day or any other things. Chain which is related with the previous things. ठीक है, चेन बेस में क्या होता है कि जिसका उसके अगले वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके साथ कुछ कनेक्शन होता है. आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर अभी ये क्या बोल रहे हैं, सर ये क्या है हमारे लिए, दीज आर द न्यू वर्ड्स, राइट. ये चेन बेस क्या है, चेन ये क्या, इज दैट रिलेटेड विद द कोरोना चेन और समथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है, ठीक है. दिस इज नॉट द, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड. चेन मीन्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द प्रीवियस ईयर शुड बी कंसिडर्ड, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि 2019 के अंदर हमारी लाइफ कैसी थी, तो वो सिंपल थी, राइट. लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूं तो वो ऐसी नहीं है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2019 को एक चेन में लेकर के आपको बोला है कि आप कंपैरिजन करो. तो ये जो कंपैरिजन होता है दैट इज अबाउट द चेन बेस. सो फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड. फिक्स बेस मेथड में द ईयर should be fixed and the chain based method, the year keeps on changing. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ओके, अब इसके बेसिस पे समझो. दिस चैप्टर कंटेन्स टोटल 12 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, राइट. टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें से हम अभी उसके 4 मेथड्स के बारे में बात किए हैं और उसके बाद अभी हम पहले मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पहले मेथड का नाम है बेस मेथड. मैं फिर से याद दिला दूं, बेस मेथड में देयर आर अगेन सब मेथड्स ऑफ दैट मेथड. कि फर्स्ट इज फिक्स बेस मेथड एंड द सेकंड इज चेन बेस मेथड. अब उसमें सर सम्स कैसे आएंगे, सर आप थियरिकली बात कर रहे हैं, अभी थियरी कितना करेंगे सर, अभी सम्स के रिलेटेड क्या है. सो टुडे राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम ऑफ द फिक्स बेस मेथड. इसका फिक्स बेस मेथड वाला सम्स कैसा होना चाहिए. ये फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम. इफ आई एम टेलिंग 2050, 2060, 2070, 2080, 90 and this 20. So as you can see that I can say that in 2050 the price of any commodity, take an example of any potato or banana, right. So 2015 में प्राइस था 50 रुपये, 2016 में हो गया 60 रुपीज़, 17 में हो गया 70 रुपीज़. मतलब ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली 2015, 16, 17 में इंक्रीज हो रहा है. सडनली यू कैन सी दैट 2018 में 40 हो गया है, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, राइट. वी ऑल नो दैट द डिमांड एंड सप्लाई रूल ऑफ इकोनॉमिक्स. सो 2019 में 30 एंड व्हाट सी 2020 में हो गया है सिर्फ 10 रुपये. तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो कैसे करना है, और ये 3 से 5 मार्क्स का सम आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है डेफिनेटली. तो अभी अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको इसका इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है तो वो आप कैसे करोगे. तो इसका इंडेक्स नंबर जब आपको फाइंड करना है तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि ये जो यहाँ पे फिक्स बेस मेथड हमने लिया है, इफ दिस इज फिक्स बेस, तो सारे जो साल दिए गए हैं उसका जो फिक्स बेस है दैट इज 2015. तो उसका जो प्राइस है वो प्राइस वहाँ पे सेम टू सेम रहेगा. जैसे कि मान लो कि अगर ये इसका इंडेक्स नंबर मुझे फाइंड करना है, वैसे हर एक साल का मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. अब इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है कि अगर आप देखिए यहाँ पे एक हम रफ वर्क ले रहे हैं कि इंडेक्स नंबर ऑलवेज सीम्स लाइक दिस. अब सर ये क्या है, ये आपने क्या लिखा होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100. अब ये क्या है, तो पहले हम ये बता दें, जैसे ही हमने पहले बात किया था वीडियो की शुरुआत में कि भाई 100 क्या है, तो इंडेक्स नंबर जो है 100 पे कैलकुलेट होता है एंड दिस P स्टैंड्स फॉर प्राइस.
करंट ईयर का प्राइस बोला जाता है, एंड इफ इट इज 0 तो उसको बेस ईयर। 1 मतलब करंट ईयर। तो अभी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो 50 जो है वो करंट ईयर है, उसका बेस ईयर 2015, ये 5-6 सालों में सबसे पहला जो साल आया है वो 2015 है, तो 2015 जो रहेगा वो हमारा बेस ईयर। तो अगेन दैट इज 50 into 100। सिंप्लीफिकेशन अगर मैं दे रहा हूँ तो 51 से 50 देन कम्स टू 100। सो द 100 इज इंडेक्स नंबर, ये हमने इंडेक्स नंबर फाइंड किया। वैसे ही इफ इट इज 60 डिवाइड बाय 50 into 100, 70 upon 60 into 100, ये यहाँ पे 60 की जगह हमको क्या लेना है 50, 50 और 50। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि अगर फिक्स्ड ईयर जो मैंने लिया है उसका जो भी प्राइस है वही मुझे हर एक के डिनोमिनेटर में लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं 40 डिवाइड बाय 50 ले रहा हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं 30 डिवाइड बाय 50 ले रहा हूँ, अगेन यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 50 ले रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 50 सिर्फ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो बेस ईयर मेरा 2050 है। अगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं भी बोला है तो मुझे 2050 ही लेना है। अगर उन्होंने सम्स में कहीं पे बोला हुआ है एक्सरसाइज 1.1, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तो अगर उन्होंने बोला है कि 2017 का बेस ईयर लेना है, वो फिक्स लेना है, तो 2017 का प्राइस जो है वो क्या दिख रहा है मुझे 70। तो हर एक के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, हाँ 70 आएगा। एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे हो। अभी अगर इसका सिंप्लीफिकेशन में करूँगा तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं या वर्बली कर सकते हैं। 15 2 जा, तो दैट कम्स टू 120। सो 120 क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इंडेक्स नंबर मिल रही है, दैट कम्स टू 140। इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो हो जाएगा 80, इसको अगर करेंगे तो दैट कम्स टू 60 एंड दिस वन इज 20। नाउ यू विल सरप्राइज कि सर ये क्या हुआ। तो ये आंसर हो गया है, ये आपका सम हो गया है यहाँ पे। तो द आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100, 120, 140, 80, 60 and 20. So these are the index number that we find. So this is the base number. Got it? समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया है जिसके 4 मेथड्स है। जो 4 मेथड्स में हम लोग अभी फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? क्या है? हाँ, यस, दैट बेस मेथड, राइट। अब बेस मेथड के अंदर हम जा रहे हैं तो उसके सब मेथड्स क्या है, फिक्स बेस और चेन बेस। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस का रूल क्या है, उसके नाम में ही लिखा हुआ है कि वो फिक्स रहता है। नॉर्मली क्या होता है, फिक्स बेस मेथड को आप लोग FBI के नाम से भी जान सकते हैं। FBI जो है उसका पूरा नाम है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, है ना। शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि FBI वाला मेथड आ गया तुझे, और चेन बेस मेथड का शॉर्ट फॉर्म जा रहा है CBI, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस है और ये फॉरेन पुलिस है, ऐसा नहीं है। डोंट टेक इट सीरियसली इन दैट पर्टिकुलर वे। चेन बेस मेथड मीन्स वो बदलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे फिक्स बेस मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अभी ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, इट इज नॉट गिवन इन द इलस्ट्रेशन। विल डिस्कस लेटर ऑन और राइट नाउ अबाउट द एक्सरसाइज 1.1। सो हियर वी गो, एक्सरसाइज 1.1। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर अगर यहाँ पे 4 मेथड्स है तो किस तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। सो अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो फ्रेंड्स देयर आर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, और चारों का कंबाइन करके चैप्टर नंबर 1। अगर ये 1.1 से लेके 1.4 तक आपको आ गया तो समझ लो आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 12th कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि ये फर्स्ट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड के टाइम पे फर्स्ट मेथड को ही फोकस कर रहे हैं। अब फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सम नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें सम नंबर 1 जो है उसका जो
सम उन लोगों ने दिया है वो हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। आप भी मेरे साथ साथ उसको लिख दीजिए तो यू विल हैव एन आइडिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। से लेके यहाँ पे 2015 तक हमको दिया गया है। 2010 आप मेरे साथ ही लिखिए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा ऐसे ही वीडियो को स्क्रॉल करने में। जस्ट स्क्रॉल इट फ्रॉम 2008 टू 2015। नाउ कैन एनीवन टेल मी इसमें यहाँ पे बेस ईयर क्या होगा, क्या हो सकता है? यस एग्जैक्टली 2008 इज द बेस ईयर। 2008 हमको बेस ईयर लेना है। अगर उन्होंने नहीं भी बोला है तो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बोल दिया है। तो अब यहाँ पे प्राइस उन्होंने क्या दिया हुआ, प्राइस जो दिया हुआ वो लिख रहे हैं 275 and 284, then it's 289, 293, 297, 313, 328 and 345। ठीक है, अब इसका मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड कैसे करेंगे? अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं फिक्स बेस मेथड। तो सिंपली जैसे हमने वो एग्जांपल लिया उसमें बेस ईयर कौन सा था 2015, उसका प्राइस कितना था 50 रुपये, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हर एक के डिनोमिनेटर में हमने क्या किया 50 रुपये। यहाँ पे हमारा बेस ईयर कौन सा है 2008, राइट। इसका प्राइस कितना है 275 रुपये। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर एक के डिनोमिनेटर में 275 लगाना है। अगेन रिपीटिंग टू यू डियर स्टूडेंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अगर यहाँ पे 2008 बोला है तो 275 ही लेना है, अगर 2012 बोला है तो 297 ही लेना है। हर एक के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोला है तो यू कैन टेक द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंडेक्स। अभी यहाँ पे इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया ही है उसको। सो अभी इसको इंडेक्स नंबर कैसे 275 इंटू सिंप्लीफाई बाद में करेंगे 284 डिवाइड बाय 275 then 289 डिवाइड बाय 275। आ रही है बात समझ में? क्या हो रहा है, हर एक के डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं हम लोग 275। तो यहाँ पे फिर 293 डिवाइड बाय 275 200 97 अपॉन 275 then 313 275। आप घर पे स्केल लगा करके भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे से कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो पोर्शन जा रहा है वो सेग्रीगेट कर सकते हो। एंड द लास्ट, अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे उसका सिंप्लीफिकेशन आए। तो अभी अगर हम कैलकुलेटर करेंगे यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हो 275 1 275 करके, तो यहाँ पे आएगा 100। ये 100 क्या है, इसका इंडेक्स नंबर। सिर्फ इतना कर लोगे आप तो ये सम आपका फर्स्ट टेस्ट में 5 मार्क का गिना जाता है। इट्स अ वेरी सिली इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब दूसरे का अगर हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाइड करेंगे तो जाएगा यहाँ पे 103.27। या आप इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाइड कर देना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वो उसका टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं इसको सीधा आंसर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 105.09 ये हमारा जो मिल रहा है वो 2010 का इंडेक्स नंबर बताया जा रहा है। देन विल हैव उसके बाद है 108 एम्बुलेंस 113.82। ये सब सिंप्लीफिकेशन करके लिखे गए हैं यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज 125.44। तो ये जो है ये इसका
इसके आपको मिलेंगे 500। So this is the base method of fixed particular any price or any data that given in test chapter. ठीक है, सो एक क्विक गो थ्रू कर ले। आई नो आपका बहुत टाइम हो गया है, एक क्विक ग्रो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। अगेन आई एम टेलिंग टू यू देयर आर 9 चैप्टर्स इन 12th स्टैंडर्ड एज यू लर्न, जो आपने 11वीं में 9 चैप्टर पढ़े थे। यहाँ पे क्या है कि 12वीं में पहले 4 चैप्टर आपके पार्ट 1 में और बाकी के 5 जो है उन्होंने पार्ट 2 में डाल दिए। अभी आपको दिवाली तक के जो अंदर है वो सिर्फ 4 चैप्टर का अभ्यास करना है, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है। 4 बजे हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है, कौन सा? यस, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या आता है? 4 मेथड्स। कौन से 4 मेथड्स? बेस, कन्वर्जन ऑफ बेस, लिखा है ना आपने नोट में, आप चेक कर लो क्या है। बेस मेथड, कन्वर्जन ऑफ बेस मेथड, फिर क्या है? हाँ बताओ बताओ, सही है सही है। हाँ, द फॉर्मूला मेथड एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसमें से आज हमने क्या स्टार्ट किया? क्या स्टार्ट किया? हाँ, बेस मेथड। बेस मेथड में क्या है? फिक्स बेस और चेन मेथड। फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड का शॉर्ट फॉर्म है एफबीआई और सीबीआई। हमने क्या पढ़ा? एफबीआई। एफबीआई में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो रहता है वो सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो मेथड का नाम है। और हमने एक एग्जांपल देखा और एक्सरसाइज 1.1 दिया। अब उसके जैसा ही है एक्सरसाइज 1.2 जो आपको घर पे सॉर्ट आउट करना है, उसके जैसे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 भी आपको खुद से सॉर्ट आउट करना है। इतना अगर आप करोगे तो फिर हम सीबीआई के पास जाएंगे, आई मीन टू से द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। ठीक है।